What's up, fam? It's me, Arya. Welcome back to Coffee and Unicorn. And today we have one of the most exciting guests that we have had on Coffee and Unicorn, Dev Taneja. वेलकम वेलकम तो आपको बोला है Welcome to Coffee and Unicorn. हाँ Okay, so a little about Dev. I have stalked him. I can Okay. openly accept that a lot on social media. Mhm. And from what I know, Dev is a pretty chill guy, and he has been working consistently since he was in college. He's just 23 and he has already made a company which is successfully getting on the way to getting acquired and building unjob.ai. I've had a chance to meet him in one of his events as well. He's very grounded, very humble, and a lot of fun I'm expecting from this podcast, this session. इतना भी कुछ नहीं है ठीक है आई एम जस्ट देव तनेजा फाउंडर ऑफ unjob.ai so we help freelancers get clients get freelancers through our platform safe and secure so it's like Tinder for hiring. Okay, so we are also doing something different. How long has it been since you last sketched? So it's been around 5-6 years now. Okay, then let's bring back that creativity. We'll Cool. sketch while we talk, है ना? Sure. यूनिकॉर्न बनाना है ना? हाँ जी. Okay. This is our unicorn. We are doing this. Let's see who wins at the end. हाँ यार श्योर मैंने कभी बनाया नहीं ऐसा एनिमल्स नहीं बनाया मैंने. So, before you started Unjob, Right. है ना? So before that you were working on Anime Devta. Anime Devta started from a YouTube channel. अच्छा. जिस YouTube चैनल को जिसमें यूज टू रिव्यू एनिमे. Okay. है ना? तो वहाँ पे आई यूज टू गेट स्पॉन्सर्स फ्रॉम डिफरेंट एनिमे ब्रांड्स कि हमारा स्पॉन्सर कर दो, ये कर दो. फिर हमारे जो कस्टमर व्यूअर्स हैं उन्होंने बोला कि यार किनका रिव्यू कर रहे हो, दे आर ओवरली एक्सपेंसिव प्लस देयर क्वालिटी इज शिट. We thought कि नहीं, we will make India's most affordable anime merchandise brand. Okay. So we started doing that. And as simple as that. वहाँ से anime start हुआ. So believe me, जो पहले brands थे, they were selling a Itachi ring for like 800 rupees, 900 rupees. बाहर से आप import कर रहे हो 2200 रुपए लग रहे हैं आपके. We bought that for 30 rupees. ठीक है? Okay. And we launched it for 99 rupees. अच्छा. तो imagine this ना कि आपको 2000 rupees मिल रहा है इसे 99 rupees. आज लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा कि if we are genuine or are we a scam. Right. But करते करते people started believing and ऐसे फिर word of mouth इतना खतरनाक फैलाना, मजा आ गया. Most founders are misunderstood, right? Founders are misunderstood as in they're labeled as कि ये तो profit के ही पीछे भागते होंगे, and they are not actually sacrificing anything for their company or for their nation. What do you think? Like when you are building something, what is your mindset? यार if I am making profits है ना, मैं आपको already taxes में दे रहा हूँ nation को. Correct. है ना, ऐसा नहीं है कि founders are against the nation. क्यों करेंगे वैसा? ठीक है. But it's often कि nation is against the founders. Okay. आप देखोगे कि गवर्नमेंट में ऐसे ग्रांट्स कहने को मिलते हैं बट बिना कमीशन दिए काम नहीं निकलता. ठीक है. अगर आपको सीड फंड भी लेना है तो उसको मिल जाएगा मे बी जिसको जो डिजर्विंग ही नहीं है, जिसका बहुत अर्ली स्टेज है, बस रनिंग है, जिसको और सपोर्ट चाहिए स्केल करने में, प्रोडक्ट बनाने में, उसको नहीं मिलेगा बिकॉज वो कमीशन देने को रेडी है. वो मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. क्या होता है, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्वड. दैट इज व्हाई पीपल आर लीविंग इंडिया, मूविंग टू दुबई. होता है. तो ऐसा फाउंडर्स क्यों नेशन के अगेंस्ट होंगे? फाउंडर्स तो नेशन के ही एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं ना, नेशन से ही टैलेंट निकाल रहे हैं. आपने देखा कोई यूएस की कंपनी जो इंडिया में सर्व कर रही हो? इंडिया की कंपनी ही यूएस के क्लाइंट को सर्व करती है. बाहर का पैसा ही अंदर आ रहा है, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, यहाँ पे चीप लेबर है, तो इंडियन एम्प्लॉयमेंट तो यहीं जनरेट हो रही है. Right. Against थोड़ी है कोई company. So I recently saw your LinkedIn post about whether to build your startup in Bangalore or Noida. आपको लगा दूसरे वाले की बात कर रही हूँ, which I will come back to. I have stalked you enough. So
हाँ, तो what did you conclude? I mean, I have read it, सी but why did that question come up? सी देखो, टेक कंपनी है ना, बहुत सारे टेक के फाउंडर्स है ना बैंगलोर में, एंड बैंगलोर इज अ न्यू प्लेस जहाँ पे लोग ट्राई करने के लिए ना रेडी रहते हैं नई चीज़ों को, Correct. कि इट्स अ न्यू ऐप, लेट मी ट्राई, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, लेट मी ट्राई। यहाँ पे दिल्ली इज मोर लाइक अ इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं दे फंक्शन वेल, हाँ, है ना। बट बैंगलोर इज लाइक यहाँ पे आपका टेक और न्यू एज एआई स्टफ गोस मोर, ठीक है, एंड पीपल आर मोर ओपन टू इट, और वहाँ पे नेचुरली इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पर बैंगलोर was not meant to be the Silicon Valley of India. why? It was a place जहाँ पे लोग आते थे, it was like पुणे, जहाँ पे बहुत सारे pubs होते थे, clubs होते थे, and people used to have a night life, ठीक है, that is how Bangalore was planned. but वो companies आती गई, लोग आते रहे, it became Silicon Valley, है ना, and people have spent decades there building that, but now they are realizing कि infrastructure is not managed properly, जाम लगता है, it has got overly expensive for the new people, That's right. है ना, people are also earning more कि उनका निकल जा रहा है, but it is got really expensive, and investors are slowly leaving Bangalore क्योंकि फिर उनका time का value है, Right. है ना, they are also investors because they are earning money somewhere, है ना, they have been operators, they have run their own brands maybe before, maybe Correct. sold them, उनका भी time important है, तो वही बात है कि वो जा रहे हैं तो फिर लोग भी जाएंगे, प्लस अभी कंट्रोवर्सी आई थी जो, देखो आई हैव बीन टू बैंगलोर 2-3 टाइम्स, इट्स नॉट कि मैंने एक्सपीरियंस करी है, बट द इन्वेस्टर दैट आई वाज टॉकिंग विद, उन्होंने बोला कि यार उन्होंने 30 साल बैंगलोर को दिए हैं, ठीक है, दे हैव प्रैक्टिकली बिल्ड बैंगलोर, एंड उसके बाद अगर कोई ऑटो वाला के बोलेगा कि स्पीक कन्नड़ ओनली, so it obviously they will feel disheartened कि यार I've made the city technically, तो if people are investors are leaving Bangalore, तो investors मतलब अगर टेक कंपनी में जाने का मतलब नहीं है, you can scale from anywhere, हमारा तो प्ले स्टोर पे you can download the app एंड वहाँ से आगे चल जाएगा आपका काम, Right. अभी हमारा जो अभी करंट इन्वेस्टर्स हैं वो भी दे आर फ्रॉम दुबई, वी जस्ट मेट देम इन नोएडा, तो चल रहा है, इन्वेस्टर्स कहीं भी मिल जाएंगे। So, okay, coming to investments, you recently raised some investment, right? I'm not going to call out the numbers. Better. Of course. So what are the basics of investments? If any founder is listening to this, what would you tell them? यार देखो, if you are a first time founder, it is very difficult for you to raise funds. Okay. ठीक है, आपको experience होना चाहिए in building your own something, है ना, तभी, क्योंकि people इतना बड़ा अमाउंट है ना, VCs are accountable for someone else's money, right. Angels have their own money, उन्होंने उनका हार्ड एंड पैसा है, उन्होंने अपनी लाइफ का टाइम लगाया है उसको अर्न करने में, right. तो अगर आप उनको अप्रोच कर रहे हो क्या कि यार फर्स्ट मीटिंग में यू विल गिव मी यार 2 करोड़ का चेक, ऐसा नहीं होता, आपका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, द इन्वेस्टर हैज टू बी, कहते हैं ना, द इन्वेस्टर हैज टू ट्रस्ट यू कि यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 5 years, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, okay, if I will invest my money, it will be safe, it will give me some returns, if not you will not run away, basically. तो आपको ये नाम है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है, आपके रेफरेंसेस अच्छे, आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, वो धीरे धीरे बिल्डअप होने में टाइम लगता है, या फिर ऐसा है कि आपका फर्स्ट टाइम है, आपका रेवेन्यू इतना सॉलिड है, यू हैव अचीव समथिंग दैट नो वन एल्स हैज डन, आपका कोई ऐसा केपीआई है, यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन जो बाकी ब्रांड्स के पास नहीं है, और यू हैव सच अ प्रोडक्ट जो बाकी ब्रांड्स कॉपी नहीं कर सकते, तो कुछ यूनिक होना चाहिए दैट मेक्स इन्वेस्टर्स कि यार मस्ट सी जाए। तो अच्छा, तो हाउ मेनी इन्वेस्टर्स डिड यू गो टू बिफोर यू रेज्ड? अंजॉब में ओनली वन, ओके, है ना, बिफोर दैट वी हैव वेंट टू मोर देन 150 इन्वेस्टर्स इन द प्रीवियस वेंचर। अच्छा, तो इस इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी स्टोरी है, इफ आई टेल यू। सो हम वी हैड डिसाइडेड कि हमें आने में देवता को बंद करना है, है ना, वी वांट टू डू समथिंग बिगर, हमारा ओरिजिनल गोल वाज टू गो इनटू टेक, हमने D2C टी शर्ट बिजनेस वी जस्ट स्टार्टेड इन कॉलेज, है ना, वो स्केल अच्छा हो गया, वो अलग बात है, ठीक है, बट वी डिसाइडेड कि हमें टेक कंपनी शुरू करनी है, तो हमने लिंक्डइन पोस्ट डाली कि इट इज वेरी सॉरी टू लेट योर लेट समथिंग गो व्हिच यू वंस कॉल्ड योर ड्रीम, ठीक है, तो एक बहुत सैड पोस्ट थी, देन वहां से हमें रुचियां मिली, ठीक है, रुचियां रीच आउट कि यार हाय देव व्हाट्सअप, आई नो यू फ्रॉम द लास्ट
2-3 years. हम्म It's very sad to see that you are closing Anime Devta. अच्छा Would you like to run my other company? ओके है ना? I told her, ma'am, I have already a vision that I want to pursue on job.ai, and I want to make this one of the biggest giants in the tech industry ever. ठीक है, something on the level of Meta, Google or something. ठीक ठीक है है, और मेरा विजन सेट है, तो आई हाँ कैन नॉट डू दैट. तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आई एम इन इंडिया, लेट्स मीट. हम्म है ना? तो रुचि मैम से आई मेट इन एनिमे देवता ओनली. हाँ शी वाज माय नेबर कंपनी. ओके है ना? मतलब वेयर माय ऑफिस वाज, उनका हाँ ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पे था. अच्छा आई हैड अ वेरी स्मॉल शॉप टाइप ऑफिस. उनके पूरे फ्लोर्स थे, ऊपर के नीचे के फ्लोर्स दोनों उनके थे. तो उनका कंस्ट्रक्शन ऑफिस में चल रहा था, तो आई यूज्ड टू गेट डिस्टर्ब्ड अ लॉट, अच्छा क्योंकि मेरा कंटेंट क्रिएशन था. तो मैं मैम हाँ को कंप्लीट करके जाता था, मैम कंस्ट्रक्शन बंद करा लो यार, 3 महीने हो गए यार, कब तक बन रहा है आपका ऑफिस, हम मेरे को काम करना है. देन ऐसे करके मैम से मिला था. तो ओके अब 2-3 साल हो गए थे, तो मैम ने मीटिंग में बोला कि आई नो यू फ्रॉम 2-3 years, यू विल डू समथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, बताओ हाउ कैन आई हेल्प. मैंने कहा मैम हमें 50 लाख रुपए चाहिए ना, वी वांट टू बिल्ड दिस. आई थिंक विल हैव टू सेंसर दिस पार्ट, कितने पैसे नहीं, चाहिए 50 लाख तो ओके पब्लिक है, अच्छा कितने ओके परसेंट पे हुआ वो अलग बात है. ठीक है है ना? बट आई नीड 50 लाख रुपीस. मैम वाज लाइक ओके, I know just like that just like that. Yeah, I know you from 3 years. You can do it, whatever you Okay. want to do. Ideation stage पे there was no business model, there was no product, there was not even a website, there was no traction. मैम के पास आया, I have this Instagram page, I'm building hype for this product, I'm going to launch this in 2 months. This ये जून की बात है. अभी हम अच्छा। बैठे हैं नवंबर नवंबर में. ठीक है, तो हमारा लॉन्च हुआ था 15 अगस्त को. तो जून से हम हाइप बना रहे थे, मतलब मैं इनकी 2 महीने से हाइप बना रहा हूँ, 2 महीने बाद इसको लॉन्च करूंगा 4 महीने में, एंड आई विल मेक श्योर कि बेस्ट प्रोडक्ट होगा. बट आई नीड 50 लाख रुपीस ताकि आई कैन स्पेंड नेक्स्ट 10 मंथ्स पीसफुली. क्योंकि मेरा महीने का खर्चा 5-6 लाख सैलरीज में जाएगा. और मेरे को 10 महीने चाहिए प्रोडक्ट को लाइव करने में, अच्छा ट्रैक्शन लाने में. उनका ठीक है, ले लो. That simple. just like that so basically you'd say कि networking helped you a lot and being consistently doing what you're doing. हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी देयर ना. अगर मैम को मैं नहीं जानता तो वो हाँ. नहीं देती, है ना. बट आई नो हर, मैं 2-3 साल तक उन्होंने एफर्ट देखे हैं मे बी हमारे, कि शी हैज डेवलप्ड सम ट्रस्ट, है ना, हमारे लिए. तभी जाके शी सेड ना, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड शी इज बूटस्ट्रैप्ड. उन्होंने बिना किसी से फंड रेज करे शी हैज बिल्ड हर ओन एम्पायर, which is very commendable actually. Like her story is very good. I've met her and her story, like from the beginnings, it's like ups and downs and she has just done it. Correct. It's very inspiring. मतलब देखा जाए तो her own company is just 4 year old. उससे पहले she has done work for like over 2 decades. कुछ ना कुछ करता रहा है ना. But मतलब and she is humble. Very. है ना. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं जिससे ही मिलूं they are like I know Ruchi ma'am, she is very good, she has decided to back you. Wow, nice, we're so lucky. That is true. So what would you say कि founders network के बारे में आपका what is your opinion? Like founders are so busy, it's very difficult for them to go out and consciously network. हाँ. Right. True. And you have recently done a networking events. Right. We do every month. Yeah. तो why do you think it's important? किस प्लेस पे वो यार दोस्त बन जाते हैं यार, और कुछ नहीं है. सी फाउंडर से ना रिलेट नहीं कर पाते बाकी लोगों से जनरली, क्योंकि हम 24 घंटे वर्क कर रहे हैं. किसी और का मतलब नॉर्मल जो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं लोग, उनका वर्क अलग चल रहा है, उनकी लाइफ टिपिकली 5 के बाद स्टार्ट हो रही है. हमारी लाइफ स्टार्ट ही नहीं होती. पूरा टाइम ही वर्क चल रहा है, हमारा वर्क लाइफ एक ही चलता है. सो हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए दिस इज आवर लाइफ. Exactly. Our work gives meanings to our life. तो हम रिलेट नहीं कर पाते काफी चीजों में. तो फाउंडर से रिलेट कर पाता है. तो अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं, वो दोस्त आगे रेफर कर देते हैं, मे बी विल गेट क्लाइंट्स, नहीं तो यू विल गेट समवन टू टॉक टू, ये कॉफी वाला. Like I recently met a founder and she said कि if you are a founder and you have hair left on your head you are not doing enough work. That was her like statement. Okay, so recently जो आपने event किया है, you invited someone and same thing happened. They took a phone detox, went हाँ.
for a retreat, wellness retreat, Right. and there was no connect. Have you ever done this? Can you ever do this as a founder? नहीं, I cannot do this if I have given my commitment कि I will come to your event. Right? देखो, he was one of our panelists, है ना? And all the people who are coming here were at least worth 100 crores. ठीक है? तो I know you are on the other league, आप 2000 crore के ऊपर हो, ठीक है? पर आपने कमिटमेंट दी है, एंड आपने 3-4 दिन पहले फाइनल करा है, then you suddenly vanish, right? रिप्लाई नहीं देते हो, तो this is bad. That is true. अब do you think कि नहीं, but and he was also a potential investor for our next round. Okay. But अब हम रेज ही नहीं करेंगे उनसे. Okay. हमें पता है कि यार, हमें पता है कि हम तो सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है, बट आई विल नॉट गिव यू अ चांस नाउ टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी. अच्छा. Because you broke our trust. I see. So, like, but can you, as a founder, let's say you have not made a commitment for an event or something, but as a founder at this stage, can you ever do this कि तुम 3 दिन के लिए you are just disappeared from the face of the earth, you have no social connect, no one can reach you? कर सकते हैं. How? थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, मेंटल ब्रेक्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि बर्नआउट हो जाता है ना. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब आई एम क्रिएटिंग कंटेंट आल्सो. कंटेंट इज अ क्रिएटिव वर्क, पर हम रहते हैं स्ट्रेस में, और फाउंडर का वर्क इज वेरी बोरिंग. टेबल पे बैठना होता है, काम देखना होता है, काम करवाना होता है, एंड आई कैनॉट जस्ट क्रिएट, कैनॉट बी स्क्रिप्टिंग कंटेंट माई सेल्फ. एडिटिंग का एडिटर करता है, बट अच्छे अच्छे क्रिएटिव टॉपिक्स ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट. तो मतलब बर्नआउट हो जाता है. कभी कभी आपको जाना पड़ता है. जस्ट केम फ्रॉम बद्रीनाथ अभी फ्यू वीक्स बैक. बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फिर उसी के बाद मेरा मन ज्यादा करा कि यार दिल्ली छोड़ देता हूँ, बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पे. वहाँ पे बड़ा मस्त हवा है. इट वाज -14 वहाँ पे. तो मतलब आई गो ऑन अ लॉट ऑफ ट्रैक्स. Okay. Which is the best trek you have been to? रुद्रनाथ. Okay. Any stories from there? I have a very interesting story. Do tell. So पहले है ना, पिछले साल से पहले वाले साल पे 75 हार्ड चैलेंज चल रहा था, है ना. सो आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट फॉर दैट. तो डेली ब्लॉग्स चलते थे, एंड आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट एट दैट पॉइंट. तो मैं गया रुद्रनाथ, एंड आई वाज नॉट गोइंग टू गो टू रुद्रनाथ बाय द वे. मैं तुंगनाथ जा रहा था, बट आई हैड 5 days इन माइंड. मैं फर्स्ट डे ही फ्री हो गया. तुंगनाथ से बोला कि तो बहुत छोटा सा ट्रैक है, तो गार्डन की वॉक थी. इट वाज नॉट इवन अ ट्रैक तुंगनाथ का, तो वो तो सीनिक व्यू है बस, चंद्रशिला ट्रैक. देन आई गॉट फ्री. देन एक मैं बैठा, शेयरिंग टैक्सीज होती हैं, इफ यू वांट टू गो बैक टू देहरादून और इफ यू वांट टू गो हेड टू बद्रीनाथ. मेरे को मिली नहीं. मैंने कहा यहाँ पे स्टे वाज 7,000-8,000 रुपीज पर मंथ पर डे, है ना. मैंने कहा ठीक है, दूसरी मिली है, उसमें बैठ जाते हैं. फिर उसने बीच में कहा कि यहाँ रुद्रनाथ है एंड इट्स द लास्ट डे. अच्छा. मतलब कल बंद हो जाएगा, वो परसों बंद हो जाएगा, यू शुड गो, है ना. तो मैं यहाँ पे सगरगांव पे रुक गया, एंड मेरे पंच केदार चल रहे थे बेयरफुट. अच्छा. ठीक है, बिकॉज करना था. ठीक है, आई वांट टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस. तो बेयरफीट कर रहा था. रुद्रनाथ इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स केदार, पंच केदार में. अच्छा. है ना. तो इट्स 25 किलोमीटर अप, 25 किलोमीटर डाउन, एंड मैं ऊपर तो पहुंच गया, एंड इट वाज वेरी रफ क्योंकि रेन हुआ था. तो बहुत सारे स्टोन्स नीचे गिरे हुए थे. तो ऊपर आता पैर छिल गए, है ना. आई वाज कमिंग बैक. अब आई वाज बेयरफीट, मेरे शूज तो थे ही नहीं, नीचे होटल में थे. स्नो स्टॉर्म हो गया, है ना. एंड पूरा बर्फ हो रखा है. आई थॉट कि मैं पहली बार बर्फ देख रहा हूँ. इट वाज माय फर्स्ट टाइम सीइंग स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. एंड कुछ ही टाइम में वो बहुत ज़्यादा बारिश, स्नो होने लग गई. मुझे अब तो निकलना पड़ेगा क्योंकि आई हैव नथिंग टू ईट. ठीक है, देयर इज नो सिग्नल, आई एम अलोन. मैंने घर पे बताया भी नहीं क्या मैं है. ओके. ठीक है, देयर इज नो वाटरफॉल से आता है जो लेना पड़ता है, और वो दूर है, पता नहीं कहाँ मिलेगा. तो उस टाइम पे इट वाज स्नो, आई वाज बेयर फीट. आई गॉट अ स्मॉल स्केल ऑफ frostbite on my legs. ठीक है, I was on bed rest for a week after that. There was no hospital nearby, तो मेरे को देहरादून वापस जाना पड़ा अगले दिन. ठीक है, उसका मैं 1 हफ्ते तक लेटा हुआ. मेरा चैलेंज टूट गया, कंटेंट टूट गया, एवरीथिंग. फिर मैं उसके 6-7 महीने तक कहीं नहीं गया. अच्छा. आई लाइक हो गया, अब कोई भी स्नो ट्रैक होगा, आई विल गो विद द ग्रुप, नॉट अलोन. I did Kedarnath. That was the most difficult trek I have done, and that was right after COVID. तो COVID से पहले जब वहाँ पे पूरा सुनामी, मतलब वो पूरा
हाँ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तब तक हुई नहीं थी जो सेफ्टी कंस्ट्रक्शंस होनी थी, और जब अब आई थिंक हो चुकी है, इट वाज सो कोल्ड that you cannot even drink water. You are thirsty, but the water is so cold, you cannot drink it. right. So that was the most difficult trek I have been But on. Kedarnath is a easy trek. Really? Kedarnath comes in easy. Then Okay. Rudranath is moderate. Okay. है ना? Then there are hard level tracks like Kinnor Kailash and श्रीखंड महादेव, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। तो वो ग्रुप्स में ही होते हैं। हाँ। तो अब तो यात्रा बंद हो गई है। Okay. मतलब यू विल सी उत्तराखंड में, उत्तराखंड इफ यू आई हैव ट्रैवल्ड सोलो अ लॉट, Okay. है ना, बीच बीच में, क्योंकि अब जब हम सेकंड थर्ड ईयर में थे, वी वर रनिंग ब्रांच सक्सेसफुली, पैसा भी आ रहा था, कुछ तो करते, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई ट्रैवल, तो वहाँ स्पेंड हुआ। अब आई हैव सीन, वहाँ पे देवता आना चाहते हैं उत्तराखंड में, यू विल सी गॉड्स कमिंग इनटू लाइफ, ठीक है, अच्छा। एक्चुअल ह्यूमंस को पॉजेस कर लेते हो, एंड वो बात करते हैं, ओके, एंड दे टॉक रियली वेल, ठीक है, दे विल ईट जलता हुआ कोयला, एंड ह्यूमंस को कुछ भी नहीं होगा वो खाने के बाद, दे विल जंप इनटू फायर, हाँ आई हैव सीन दिस लाइफ, दे विल जंप इनटू फायर एंड वो पूरी बॉडी वापस आ जाएगी विदाउट एनी मार्क, ओह माय गॉड, और वो एक्चुअल फायर होगी, पीपल विल ऐड घी ऊपर से रियल लोगों के ऊपर, अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनमें गॉड आ गए, एंड दे स्पीक देन। तो अभी लेटेस्ट हुआ है एक हफ्ते पहले, इफ यू सी उत्तराखंड न्यूज, तो सारे गॉड्स आर सेइंग कि डू नॉट कम टू किन्नौर कैलाश की यात्रा बंद हो गई है, देयर लॉट ऑफ रुद्रनाथ की यात्रा बंद हो गई है, बिकॉज टूरिस्ट आर कहते हैं ना थ्रोइंग गार्बेज एंड ऑल, ठीक है, एंड जब 6 months के लिए बंद होता है तुंगनाथ, रुद्रनाथ, सारे केदारनाथ बंद होते हैं 6 months, तो पीपल आर कमिंग हियर फॉर ट्रैकिंग, दे जंपिंग इनटू द टेंपल प्रेमाइसेस एंड थ्रोइंग गार्बेज, तो उसकी वजह से पीपल आर सेइंग कि गॉड्स आर सेइंग विल शो यू, देयर विल बी वन मोर फ्लड and all that. That's some that is not related to business, mystic stuff, but you will see ki all this is real, it is very real. Are you a firm believer of God, whichever religion you believe in? Well, I don't yeah, I'm a proper Hindu, and I don't believe in specific form of God, like ऐसे specifically महादेव, कृष्ण, भगवान, ऐसे नहीं, I know कि भगवान हैं, ठीक है, but I pray to everyone कि कोई भी सुन लो, कोई तो सुनेगा, कोई तो सुन लो। तो okay, coming to Unjob, okay, I see unjob.ai written on it, right, okay, let's give you 1 minute, pitch Unjob in 30 seconds. So unjob.ai is the future of work, when AI will take over the major support roles, support role jobs, ठीक है, तो you can say Unjob is like Tinder but for hiring. So people create content, I will show you, है ना, people create content like reels, let's say you are a designer or you are a video editor, you will create content, you will showcase your skills via reels, yeah, I made this logo or I made this unicorn, ठीक है, I had a story in my mind, that is why I made this, and this is how I made this, I will post reels about it, and brands or influencers who wants to hire you can just right swipe on your profile. So it's like, I will show you, so it is like Pinterest, people are creating content, ना, तो infinite scroll है, you can filter by industry and आपको बहुत सारा content मिल जाएगा, your feed will be curated to you, so there are video editors, designers, creative people, सारे भरे हुए AI agents बना रहे हैं platform पे, this is the gig section where brands are uploading gigs कि I want to hire a video editor for 1500 rupees, I want one reel edited, so people are applying, okay, ऐसा scene है, तो and this is one way, second way is the brand can also right swipe and hire you, okay, got it. So this is going to be the devil's advocate round where you have to defend unjob.ai. Okay. Okay, let's start. So I'll put my pencil down so that I'm not distracted. Okay. How is unjob.ai better than other platforms like Fiverr? Yeah, it's just been 2 months since we launched. We already have 450 brands hiring 3,000 freelancers because we have something unique. What is that? We are eliminating all kinds of resumes. Okay. We are eliminating all kinds of portfolios. Your profile, which looks like Instagram, is your only portfolio that you need. You do not need anything else. Okay. Your profile is everything for you. Okay, just share your profile. People will judge you from your profile. Your integrity score, your badges, your streaks, everything is on your profile. What is integrity score? Integrity score is like we have an Unjob score. So let's say, abhi it's not live on the platform, but we will link your
Aadhaar cards, PAN card, because typically you are earning from this, right? So we need to verify that you are real, and you Fiverr are, also does that. है ना, everyone does that. So we will give you a score. Hmm. After you complete a project, people will actually like your content, and people will also hire you. They will give you a rating. That rating will help you get more work, plus increase your following also. उसके साथ में it will even help you get real life full time jobs. Okay. ठीक है, तो अगर आपने किसी का स्कैम करा on a platform, तो you will be blacklisted. Okay. So there is no possibility of you earning again from our platform. Okay. Why is 9 to 5 a bug? I have seen that on the back of your t-shirt. It's mentioned 9 to 5 is the bug. Why? Right. It provides a certain amount of stability in everyone's life. आप मतलब freelancer हो, that is good, you are getting money. Maybe you are getting even more money than your full-time job. Right. But what about when you go for home loans and all these things? You don't have a stable source of income. How will, like, why is that a bug? See, 9 to 5 is a bug because bug क्या होता है? It is supposed to function like this, but it's not functioning like that. Okay. ठीक है, आपका है it's 9 to 5, but it's actually 9 to 9 or 9 to 10. Okay. है ना, बोल रहे हैं कि 9 to 5 है, but you're not getting paid for overtime. You're just getting कहते हैं ना, you're not getting your own space. Accolades you're getting. है ना, तो it's not like 9 to 5 is exactly bad. I'm very supportive to those people who find value and peace in 9 to 5. I cannot do that. Okay. But maybe we have a 15 people full time team. Okay. So if they are working with us, उन्होंने कुछ सोचा है ना, तो मतलब if you find value in 9 to 5, good, but we are typically against the toxic 9 to 5 that happens. Do you think कि freelancing में this part that I brought up कि stable income, because वो show नहीं कर सकते, they are facing this issue. ऐसा नहीं है. See, freelancing में if you go for a loan, there are two types of loans. एक is कि you can show your salary slip or you can show your 6 months का bank statement. उन basis पे मिल जाएगा. If you're getting 1 lakh rupees from freelancing, बैंक दे देगा आपको loan. Okay. ठीक है, but do you think कि right now in India we need this कि जो freelancers भी हैं उनके लिए भी some type of जैसे provident fund, all these things, EPF. So Zomato is working for that. Okay. Now abhi there was a finance function or something, I don't know what you call it. There was a big meeting with the finance minister of India. I know because we have a senior entrepreneur who's also one of our clients in Anjab. They're hiring from Anjab regularly, pension box. Okay. So he covered that story कि Zomato recently published a proposal कि we want to give our riders some kind of pension, some kind of additional safety. So people are working for that, and we know कि India के अंदर freelancers will only increase क्योंकि AI का एज आ रहा है. Believe me, बहुत सारी jobs है ना जो अभी हैं वो exist नहीं करेंगी. कुछ टाइम पहले तक content writing was a full time job. Correct. अब AI can do that easily. है ना, तो पहले वेबसाइट बनाने के लिए 2-2, 3-3 महीने लगते थे फॉर अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट. ना अब पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने में 5 मिनट लगते हैं लोगों को. तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो फुल टाइम थी, सपोर्ट रोल्स थी, फ्रेशर्स की थी, पर अब वो फ्रीलांसर्स में होती जा रही है कन्वर्ट. तो फ्रीलांसिंग बढ़ेगा, बहुत बढ़ना है. और इसमें मीडिएटर जरूरी है ना, समवन हु कैन मैनेज दिस. एक ट्रस्ट फैक्टर भी तो होता है ना. आपने 50% एडवांस दिया किसी फ्रीलांसर को, भाग गया रोक लो. बट हाउएवर इफ समवन डज दैट, वो ब्लॉक लिस्ट हो गया, ठीक है, बट जिसने पे किया है 50% उसके लिए क्या? तो इसलिए तो यही तो हम रोक रहे हैं ना कि द ब्रांड और द इन्फ्लुएंसर विल पे अस 100% एडवांस. अच्छा, ओके, ठीक है, एंड वी विल गिव फ्रीलांसर द मनी व्हेन द वर्क इज डन. ओके. तो हम एक सिक्योरिटी है ना कि हम आपसे 200 रुपीस पर मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे हैं. दिस वर्क इज डन, इज इट डन बाय द फ्रीलांसर? म्यूचुअल पार्टी से वो होता है, एग्रीमेंट होता है कि द फ्रीलांसर विल अपलोड द वर्क over the chat, ठीक है, submit project करके, and the hiring party will approve. Where is the confidentiality in that? Confidentiality है ना, वो था दोनों का chat है, encrypted है. But your team might be able to see it, right? We can see it for the next 7 days. But confidentiality तो चली गई ना? हाँ. Or is it like encrypted and you cannot see क्या it? confidential? You want to make a logo, है ना, confidential है वो. I don't know what, like maybe a pitch deck which has all the numbers. तो आप बताओ कि my let's say we cannot access chats without the permission of the management. Okay. तो कस्टमर सपोर्ट तभी देख पाएगा उसको जब हम उसको एक्सक्लूसिव परमिशन देंगे कि यार now a customer or a party has raised concern, now check it.
Okay. तो अगर बोथ पार्टी सही काम कर रही है, अगर कोई फ्रॉड नहीं हो रहा तो कोई देखेगा ही नहीं, और अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वी हैव टू स्टेप इन टू स्टॉप दैट। ठीक या है। टू सी कि कौन गलत है, फ्रीलांसर ने वर्क करा और ब्रांड की गलती है, या फिर ब्रांड पैसे देना नहीं चाह रहा, या फिर ब्रांड ने पैसे दे दिए हैं और फ्रीलांसर गलत कर रहा है, फ्रीलांसर का पोर्टफोलियो फेक था या क्या था, तो तब हमें स्टेप करना पड़ेगा, तो हम गारंटी ले रहे हैं। तो अच्छा, and what if they do the work, the freelancer has done the work, but brand does not like it? Now like is a very subjective word. हाँ, ठीक है, मुझे हो सकता है आपको कोई चीज वाव लगे और मुझे नहीं लगे, या मुझे कोई चीज वाव लगे और आपके लिए यार ये तो बड़ा एवरेज चीज है। बट यहाँ पे दो केसेस है। हाँ। ठीक है, फर्स्ट इज कि अगर फ्रीलांसर ने अपना पोर्टफोलियो ही फेक करा है, लाइक उसने हमारे Pinterest से उठा के कुछ डाल दिया एंड ब्रांड ने उसको देख के हायर कर लिया, बट हिज एक्चुअल वर्क वाज वेरी शिट। ओके। ठीक है, तो उस केस में ब्रांड विल गेट द फुल रिफंड। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल दिख जाएगा, वो तो एविडेंट है कि आपका So do you have some algorithm running on the there is no algorithm, portfolios? there is human touch involved in that. अच्छा, okay. Okay, we are a very operation heavy business. Okay. कि हमारा की अकाउंट मैनेजर हैज आल्सो, की अकाउंट मैनेजर को भी स्किल होना पड़ेगा उस नीश के अंदर, ताकि वो जज कर पाए कि ये वर्क उसने जो डाला है एंड उसने जो करा है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है, इक्वल लेवल पे। सेकंड केसेस की जब फ्रीलांसर का वर्क जेन्युइन अच्छा था, उसके जैसे उसने पोर्टफोलियो डाला हुआ है अपना, एनजॉब पे क्रिएट करा है पोर्टफोलियो, पोस्ट क्रिएट करी है, उस लेवल का है, और ब्रांड ने वो देखते हुए उसको हायर करा है, तो ब्रांड को रिफंड नहीं मिलेगा। बट ब्रांड डज नॉट लाइक इट। उन्होंने कहा कि यार ये मुझे इस टोन में चाहिए था, यू नो हाउ, कि प्लेफुल टोन में चाहिए था, एंड ही हैज मेड इट अ लिटिल मोर प्रोफेशनल। तो देयर आर आइटरेशंस। हाँ, तो बट फ्रीलांसर्स आल्सो लिमिट द आइटरेशंस कि आप एक या दो या तीन ही कर सकते हैं। इंडिया में इनफाइनाइट चेंजेस चलते हैं, बट हम कहते हैं कि अगर आइटर ने लिखा है या किसी डिजाइनर ने लिखा है कि आई विल डू 5 आइटरेशंस फी, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, 6 से उसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा फॉर द आइटरेशन। बट वो आइटरेशंस बहुत मिनिमल भी हो सकती हैं। मिनिमल हो सकती है, अब वो आप दोनों डिसाइड करते हो। ठीक है, कि अब ऐसा भी होता है कि कुछ में बहुत छोटा होता है, तो डिजाइनर कहते हैं कि यार मैं कर देता हूँ चेंज, है ना, आई डोंट वांट टू चार्ज एक्स्ट्रा एंड रूइन माय रिव्यू स्कोर, है ना, तो दोनों एक दूसरे को रिव्यू करते हैं। तो इसमें एक और चीज सेटअप हो रही है, यू सी, कि ब्रांड्स आर आल्सो रिव्यूइंग फ्रीलांसर्स, तो सिर्फ इंटीग्रिटी सिर्फ उसकी भी नहीं हो रही, फ्रीलांसर इज आल्सो रिव्यूइंग द ब्रांड। ओके, तो वो एक कॉमन इंटीग्रिटी, एक कॉमन स्कोर बन गया। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इन फाइवर, ये वाला पार्ट नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर एक कंपनी है, लेट्स से देयर इज अ कंपनी, कॉफी यूनिकॉर्न इज अ कंपनी, ठीक है, एंड इट हैज 5 स्टार रेटिंग आउटसाइड अनजॉब आल्सो, कि अनजॉब में भी करा है, असाइड फ्रॉम दैट, तो फुल टाइम भी वर्क करने के लिए आपको तभी अप्लाई करेंगे इफ दे विल सी द रेटिंग, यहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा है, यहाँ पे फाउंडर अच्छा है, तो पूरा टॉक्सिसिटी खत्म करनी है मेरे सिस्टम से। ओके, तो ओके, that makes sense, but आपने unjob.ai लिखा है, where is the AI factor? तो AI factor is yet in development, okay, है ना, because I cannot reveal that right now, क्योंकि वो मेन पार्ट नहीं है। हमारा मेन पार्ट इज गेटिंग फ्रीलांसर्स द क्लाइंट्स, ठीक है, एंड बीइंग अ सिक्योर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लर्निंग भी हो रही है, यहाँ पे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, बोथ द थिंग्स हो रही हैं, बट AI वाला पार्ट इज समवेयर इन द मिडिल, जो अभी लॉन्च होगा इन अ फ्यू मंथ्स, 3-4 मोर मंथ्स लगेंगे उसमें, क्योंकि इट्स अ थोड़ा हेवी प्रोजेक्ट। तो द रीजन वी रेज फंड्स वाज फॉर दैट ओनली, कि वी नीड टाइम उसको डेवलप करने में, है ना, क्योंकि अगर हमने डेवलप कर लिया एंड वी डू नॉट हैव द राइट डिस्ट्रीब्यूशन, एक बड़ी कंपनी आएगी एंड दे विल डेवलप इट इन द 2 or 3 weeks and they will capture our market. Correct. ठीक है, that makes sense. I think we had enough of devil's advocate. As a founder, you face a lot of challenges in your day-to-day. Right. What is the biggest challenge? एक बताना है। ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है यार मेरे पास। मतलब ऑनेस्टली मेरी लाइफ बहुत चिल चल रही है। अच्छा। मतलब जो हम टारगेट लेते हैं कहीं ना कहीं कर लेते हैं, और थैंकफुली अभी तो ट्रैक्शन भी अच्छा आ रहा है। स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज होता था कि मतलब हमें पता नहीं था कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, बट वंस यू नो कि आपको मार्केट कैसे करना है तो यू कैन डू एनीथिंग, है ना। एंड मैं D2C फाउंडर हूँ यार, D2C इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेसेस टू रन इन इंडिया, है ना। बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर लॉजिस्टिक्स, आपके पास कस्टमर को इशू जाता है, वो गूगल पे क्या रेटिंग करता है, स्कैम होते हैं आपके नाम पे, आपको कुछ कंट्रोल नहीं है भाई। I have a cousin who's in D2C and he is like getting threats कि we will sue you because you put this and all these things. होता है, and it's completely like incorrect information they are giving out. बट ऑन द अदर हैंड जो हम SaaS कर रहे हैं, इट्स अ सॉफ्टवेयर इज इजी, ठीक है, आपके पास अच्छी डेवलपर्स की टीम है, यू कैन जस्ट मेक अ प्रोडक्ट, एंड अगर आपको मार्केटिंग आती है
तो आपको क्या करना है, आपको मार्केटिंग बनाना है, स्केल होता रहेगा, मार्केटिंग करनी है, स्केल होता रहेगा, राइट कुछ हेडेक नहीं है, यू कैन डू चिल, ठीक है, आप मजे करो, ठीक है, क्या करना है स्ट्रेस लेके, हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस? है ही नहीं है ही नहीं यार, स्ट्रेस का कुछ है ही नहीं ना। अब बताओ, पहले बहुत आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अभी पूरे सफेद बाल हो चुके हैं उसकी वजह से, ठीक है, तो स्ट्रेस का अब मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ। ओके लेकिन क्या करूँ, जो चीज हो गई है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है जो हो रही है अगर मैं स्ट्रेस लूंगा तो खराब हो जाएगी, राइट और जो चीज होनी है वो हो ही नहीं है, तो उसका स्ट्रेस लेके क्या करूँ। कभी कभी डर नहीं लगता कि अगर ये स्टार्टअप नहीं चला मेरा क्या होगा, व्हाट विल आई डू, मैं अपना लाइक इससे लाइक अच्छा तो जॉब ही कर लूं, ऐसा कभी आता है दिमाग में नहीं यार, कि स्टेबिलिटी तो रहेगी लाइफ में? नहीं, पहले आता था, ओके अब नहीं आता। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए बना ही नहीं हूँ यार मैं। अच्छा मैं वो अनस्टेबल टाइप का आटम वो फट सकता है ना, जो कभी भी वो वाला सीन है। okay coming back to LinkedIn posts, the most controversial one, I think you already know about that, which one I'm talking about, जिसमें you talked about hiring, right. do you want to brief the audience on कि क्या हुआ था? So हमने एक पोस्ट डाली थी कि हमें एक फाउंडर्स ऑफिस के लिए रोल का एक पर्सन चाहिए, Correct. जो कि हमारे लिए जब चाहे तब काम करेगा, ठीक है, 9 to 5 का कोई जब हम चाहेंगे, ठीक है। अब वो कभी कभी होता है कि दिन में काम आता है, रात में काम आता है, ऐसे करके हमने बहुत बड़ा चढ़ा के एक पोस्ट लिखी थी कि हमें ये सब कुछ क्वालिटीज चाहिए उसके अंदर। फर्स्ट मंथ में कोई, फर्स्ट ईयर के अंदर कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, आप बस कॉलेज पास आउट होने चाहिए, और कोई डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, 21 से ऊपर की एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंड आपको फर्स्ट ईयर तक कोई सैलरी नहीं मिलेगी, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, और 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको सीधा 10 लाख रुपए मिलेंगे, और फोर्थ ईयर में आपको वन टाइम 10,000 की 10 रेगुलर, सॉरी 10 लाख वन टाइम मिलेंगे। एंड फोर्थ ईयर से है ना, जैसे आपको 10 लाख रुपीज मिलते हैं, आपका 80,000 रुपीज का पर मंथ का पैकेज हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये पोस्ट है ना बहुत वायरल हो गई, ठीक है, एंड इसे भड़क गए कौन, कंसल्टेंट्स, राइट, दैट हैव टेक्निकली नॉट रन अ बिजनेस ऑन देयर ओन कभी भी, है ना, एंड वो भड़क गए। आई एम लाइक ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट द होल पॉइंट वाज कि लोग भड़के, दैट वाज अ रेज बेट पोस्ट इंस्पायर्ड बाय दीपी सर, ठीक है, फाउंडर ऑफ जोमैटो, है ना, उनसे इंस्पिरेशन लेकर हमने पोस्ट डाली थी। द पॉइंट वाज कि है ना, हमें लोग चाहिए जो पेशेंट हो, हमें 250 रेज्यूमे आए उसके बाद, ठीक है, वो लोग के जो 1 साल पहले फ्री काम करना चाहते हैं और उसके बाद वो सीखेंगे, और जब उनके 3 साल खत्म होंगे वो टेक्निकली टॉप मैनेजमेंट हो जाएंगे ना। मतलब फाउंडर्स ऑफिस क्या होता है, सीईओ के जस्ट नीचे वाला रोल, है ना, आप टेक्निकली आप पूरी ब्रांड को संभाल सकते हो, बिजनेस को संभाल सकते हो। अब इतनी बड़ी पोजीशन पे है, अब आप ये सोचो कि आपको ये सब मिल जाएगा और आपको बस पेशेंट होना है। हमें बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे आए जो पेशेंट हैं, अभी उन सब के मतलब अभी इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं, पर द पॉइंट इज कि ये सिर्फ रेज बेट, हम पे करेंगे, ऑब्वियसली हम फ्री नहीं करेंगे, हम अनजॉब है, हम तो टॉक्सिक कल्चर से। आपने अगर उन्हें निकाल दिया तो निकाल दिया तो हम आपको पर मंथ जो भी आप आए हो, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर निकाल दिया, आप फ्री में हो, है ना, लेट्स से 10वें महीने के बाद मैंने आपको डिसाइड करा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो हम आपको हर महीने का 20,000 रुपीज के हिसाब से कर देंगे, मतलब 2 लाख रुपए आपको मिल ही जाएंगे 10 महीने के बाद भी। तो ऐसे हमारा पूरा प्लान था, और स्पेशली उनके लिए था जिनको है ना कुछ बिल्ड करने का हंगर था, क्योंकि मैं टैलेंट में मानता नहीं हूँ ना, सिर्फ आपका कोई भी हार्ड वर्क होगा ना, टैलेंट को बीट कर देगा, राइट। अभी ये सेम चीज अब मानो आप एमबीए करते, आपके 25 लाख रुपए जाते, आई सॉ योर रिप्लाई, है ना, और बहुत भड़के हैं लोग जो एमबीए कर रहे हैं, हाँ। कंसल्टेंट से एमबीए करके बैठे ना वहाँ पे। अब आप 25 लाख रुपए जाते जाते आपकी कहाँ जॉब लगती, या तो अगर लगती तो ठीक है, वैसे तो अब तो लग भी नहीं रही है ना, आफ्टर निखिल सेट की एमबीए बेकार है, निखिल कामत, तब से एमबीए वालों की जॉब की वैसी ऐसी तैसी हो रखी है, और अगर लगेगी तो मिड मैनेजमेंट रोल में लगेगी, ठीक है, 12 लाख का सीटीसी होगा, 6 लाख का आपका एवरेज पैकेज होगा, बेस सैलरी वाला जो होता है, ठीक है, आपका 25 लाख का आरओआई निकालने में आपको वैसे भी 4 साल लग जाएंगे, यहाँ पे आप आओगे, आपको 27 लाख तो वैसे भी मिल ही रहे हैं 4 साल में, हम दे रहे हैं, प्लस दिस वाज समथिंग जो हमने क्लेम करा है फ्री करने के बाद, अगर हम वैसे ही पे करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ के साथ आपका भी तो ग्रोथ होगा ही, राइट। एक बात बताओ, तो वो उसमें ये मेंशन नहीं था कि किस रोल के लिए, व्हाट इफ आई एम एन इंजीनियर, नहीं, हमने फाउंडर्स ऑफिस मेंशन करा था ना। फाउंडर्स ऑफिस में मतलब व्हाट वर्क आर यू गिविंग? फाउंडर्स ऑफिस का है ना, कोई वर्क नहीं होता, तो मतलब लाइक वो सब वर्क करते हैं, हाँ, ओके, मतलब वो एवरीथिंग, कॉफी लाने से लेके क्लाइंट क्लोज करने से लेके, अगर कोई इन्वेस्टर को पिच करना हो गया वो भी करेंगे, हर चीज, ठीक है। पर ऑब्वियसली हमारे है ना स्टार्टअप का सिस्टम बहुत अलग है, जैसे बाकी कंपनीज में ना 12 महीने के बाद
10% का या 12% का इंक्रीमेंट मिलता है हर साल में एक बार। हमारे में ये सेम साइकिल है ना 6 महीने में होती है, अच्छा, बट 10-12 नहीं होता, वो 15 से 25 होता है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टअप ग्रोथ। ठीक है, हम बहुत ऐसे मानते हैं कि आप क्या कम से कम टीम वाले हो, ठीक है, कम से कम फुल टाइम मेंबर्स, एंड जब कंपनी बन जाए $1 बिलियन कंपनी तो एवरीवन शुड बी अ मिलियनेयर। ओके, मतलब ये हमारा गोल है कि आपकी सैलरीज है ना आपके वर्क के हिसाब से बढ़ती रहनी चाहिए, कि सब भी मजे करते रहें। राइट, that is the I think motto जिस पे unjob.ai बना है, toxic culture हटे and you are being paid for what you deserve, right? राइट। And more. Okay, यार that देखो स्टार्टअप में है ना ये दिक्कत होती है, आपको स्टार्टिंग में कम सैलरी में अच्छा टैलेंट नहीं मिलता, है ना, पर अगर आपके पास उतना टैलेंट है कि आप उनको ट्रेन कर सको, शेप कर सको, तो बहुत बढ़िया है। तो डू यू फाइंड टाइम कि आप पर्सनली अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हो? डू यू थिंक कि वो फाउंडर्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करना ही पड़ता है। ठीक है, इट्स लाइक कि जैसे कोई टेक का बंदा है, मैं टेक का नहीं हूँ, है ना, यू आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, यू शुड नो, है ना। अब कोई हमारा नोट जेस वगैरह में बना है, आई हैव जीरो आइडिया कि क्या होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से कोड कर रहे हैं, मैं उनको बोल पाता हूँ कि दिस इज हाउ एवरीथिंग फंक्शंस, ठीक है, मतलब टीम कैसे फंक्शन करती है, आई कैन टीच देम लीडरशिप, है ना, मतलब मैं उनको उनकी फील्ड में बीट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली, है ना, वो टेक के हैं, मैं उनको वो नहीं बोलता कि आप ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग वेल, बट हैं तो सारे के सारे ऑलमोस्ट फ्रेशर्स या 2 साल का एक्सपीरियंस ना, दे डू नॉट नो कि एक टीम को प्रॉपर्ली कैसे चलाना है। अब ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे काफी लोग रिमोट वर्क करते हैं, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं, तो हाउ टू सॉल्व दिस। हमने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है हमने, जिसमें हम एम्प्लॉयज को ओवर, एक तो मेरे को एम्प्लॉयज वर्ड ही अच्छा नहीं लगता भाई, टीममेट्स को, है ना, महीने के एंड में ग्रेड करते हैं। अच्छा, क्लासेस में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, एस क्लास, डी क्लास, ऐसे करके। तो नहीं नहीं नहीं, इट्स मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम सोलर लेवलिंग, अच्छा, है ना, एंड वन वास। तो क्या होता है कि हम आपको हर महीने की स्टार्टिंग में ना 100 पॉइंट्स देते हैं, और हर रोज है ना आपको रिपोर्ट करना होता है, उस आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपने डेली रिपोर्ट मिस कर दी तो आपको आपका -10 पॉइंट हो जाता है, अच्छा, है ना, अगर आपने बिना बताए छुट्टी ले ली तो -2 पॉइंट, अगर मना करने के बाद भी छुट्टी ले ली तो -4 पॉइंट, है ना, ऐसे करके। आपने कोई बग सॉल्व करा तो प्लस जितने भी उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर वो बग वापस खोलना पड़ गया हमें तो उसके कुछ माइनस समथिंग पॉइंट्स, है ना, अगर आपने किसी टीममेट की हेल्प कर दी तो आपके प्लस इतने पॉइंट्स, ना, ऐसे कर करके 100 से आपका स्कोर स्टार्ट होता है। अगर आपके 95 से ऊपर है रेगुलर फॉर 3 मंथ्स, यू विल गेट 25% हाइक डायरेक्टली, और यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसके इक्विवेलेंट। और अगर आपके फिर ये आप एस क्लास में गए 95 से ऊपर या 100 से ऊपर हो तो बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हमने 2-3 महीने पहले टेस्ट करा था, सब 100 से ऊपर चले गए, कोई छुट्टी ही नहीं लेके जा रहा। फिर कुछ लोग फिर 95 से नीचे हैं ए वाले, जो आपके 85 से 95 के बीच में है, देन आपके 80 से नीचे हैं बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले। आप 50 से नीचे गए, विल ले ऑफ यू इमीडिएटली। ओके, बट डू यू थिंक 50 से नीचे जाने के लिए आपको 7 अनअप्रूव लीव लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, मतलब हमने मना कर दिया, एंड मना करने के बाद भी और आल्सो लीविंग, तो अगर आप मना करने के बाद जब नहीं आते, असाइड फ्रॉम अगर वो सिक लीव नहीं है, है ना, तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस होते हैं। तो अगर आपने 7 या 5 ऐसी लीव ले ली, आपको 2 पॉइंट मिल भी तो रहे ना, तो अगर आपने टेक्निकली 6 लीव ले ली बिना बताए, ठीक है, बिना मना करने के बाद भी, है ना, और इट्स नॉट अ सिक लीव, आपको इमरजेंसी में नहीं हो, तो टेक्निकली कोई भी कंपनी उसको ले ऑफ कर देगी, राइट, है ना, कि आप एक हफ्ता गायब थे बिना बताए, ऐसे से काम नहीं चलता ना। 15 लोगों की टीम में एक जना गायब है, की प्लेयर। ये बीच में ऐसा हुआ था, हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होना था, ठीक है, अब पेमेंट का पूरा सिस्टम उसने बनाया था एक डेवलपर ने, अब वो गायब है। एक बड़ा ब्रांड है ना, और उनको ट्राई करना है, उनका पेमेंट ही नहीं हो रहा। अब वो गायब, 3 दिन तक गायब। हम दूसरा डेवलपर ने कर लिया उसको खोल के, बट बाकी हमने वो बना लिया कि रिलायबल नहीं हो पाया, दे कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, राइट, करेक्ट। तो रिलायबिलिटी फैक्टर तो सबसे बड़ा होता है, आई थिंक। तो मतलब हम वो भी तो है ना कि चिल एनवायरनमेंट रखना है हमें वो स्ट्रेस नहीं रखना। डू यू थिंक कि जेनजीज जो है, आप खुद जेनजी फाउंडर हो, कि जो आजकल मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि यार जेनजीज आर वेरी लेड बैक, दे आर वेरी लेजी, दे आर नॉट एम्बिशियस, मतलब फालतू का टाइम पास करते हैं, ऑल दीस थिंग्स, डू यू थिंक दैट इज ट्रू?
मतलब आपकी टीम में भी जेनजीज होंगे, आप खुद एक यार वी जेनजी वांट टू हो। एंजॉय आवर लाइफ यार, हाँ ये छोटी सी लाइफ है ना, 8 घंटे हम उसमें सो जाते हैं ना, 1/3 तो वैसे गई, हाँ 1/3 हमारी बचपन में चली जाती है 20 तक, इसके राइट। बाद हमारे पास खुद का ये कुछ और पैसा नहीं होता, कोविड में भी चली गई। कोविड में भी चली गई, अब 1/3 बची है, उसको जीने भी नहीं दे रहे हैं इनको, हाँ है ना, कमेंट्स करते रहने हैं यार, अपना जियो। जब देखो हमारे पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के जमाने में जॉब और वर्क वाज है ना नेसेसिटी, मीडियम ऑफ सर्वाइवल, हाँ हमारी जनरेशन में इट्स मोर लाइक अ वांट, राइट। कि मैं कमा तो रील पे मीम बना के कर लूंगा, हाँ है ना, मैं जॉब क्यों करूँ आपके यहाँ पे, दैट इज ट्रू। मेरे को मस्ती करनी है। मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज जेंजी इज ब्रिंगिंग इन द फैक्टर कि भाई हमें थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ को वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग इन बाउंड्रीज, दैट इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन आवर प्रीवियस जनरेशन, तो दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट। दैट इज व्हाई ये जो लेबलिंग हो रही है कि लेजी हैं, अनएम्बिशियस हैं, हार्ड टू वर्क विद हैं, ये हो रहा है। यार पर ये भी तो है ना कि पहले जब इमोशनल हेल्प चाहिए होती थी, मतलब हमारे घर वाले या उससे पहले वाली जनरेशन ने ना सर्वाइवल देखा है, हाँ उनके लिए था कि यार पानी भी नहीं आ रहा घर में, ठीक है, बिजली नहीं आ रही है, आटा नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आर नॉट क्राइंग। राइट। यहाँ पे जेनजी इज मोर लाइक कि यार इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, 3 दिन की सिक लीव चाहिए, ये जेन्युइन हुआ है ना, इफ यू नो, अभी एक न्यूज हुआ है, एक इंटर्न बोलता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, आई नीड 1 वीक का मेंटल हेल्थ ब्रेक, तो ये चीज भी तो चल रही है, इन सब चीजों को देख के बोलेंगे ही ना। मतलब there needs to be some lines to this also. हाँ मतलब हम भी चाहते हैं कि हम क्यों, एक प्लेटफॉर्म है कि आप फ्रीलांस करो, कहीं भी करना है, आप अपने स्किल के बेस का पैसा कमाओ, कहीं से भी करो, किसके साथ भी वर्क करो, यूएस के बेसिक क्लाइंट्स को आप पिच करो, मैंने कब मना करा, ठीक है, आप काम करो अपना, जो मर्जी पैसे से करना है करो, इसलिए हम वेरी सपोर्टिव ऑफ फ्रीलांस वर्क, पर इसलिए मैं जॉब को भी इतना वो नहीं कहता। Indian clients are easy to work with कि US UK यूएस क्लाइंट्स, बाहर, really why? मतलब I know the answer एवरी but रीजन, yeah. एवरी रीजन यू कैन थिंक अबाउट। इंडिया में ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, हमने है ना एनएमएटा से, एनएमएटा जो हमने डिसाइड किया था कि हम बंद करना है अक्टूबर 2024 में, और अनजॉब हमने स्टार्ट करा है अगस्त 15 में, है ना, तो उससे बीच में एक पीरियड था कुछ, जब हमें डिसाइड हो गया था कि एनएमएटा बंद करना है, बट वी ऑलरेडी हैव एम्प्लॉइज, वी कैन नॉट जस्ट से देम बाय बाय, है ना, तो हमने बीच में एक एजेंसी शुरू करी देवलोक करके। अच्छा। तो इट वाज अ क्रिएटिव एजेंसी जो है ना हॉस्पिटल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैटर करती थी विद देयर एआई कंटेंट, है ना, they used to make AI avatars, AI influencers, and हम उनसे ब्रांड की मार्केटिंग करते थे, ठीक है ना, तो सॉरी मैं क्या क्वेश्चन क्या था why are foreign clients easier हाँ, to work with? तो बड़े बड़े ब्रांड्स, भाई अभी भी एक बड़ा ब्रांड है, दे आर डूइंग रफली 200 करोड़ इन रेवेन्यू, ठीक है, उनका आईपीओ आने वाला है, आ गया होगा पता नहीं मुझे, ठीक है, दे स्टिल हैवंट पेड अस, Oh my god. एंड वी मेड 300 यूट्यूब वीडियोस फॉर देम, तो कितना एफर्ट लगा हमारा, अभी तक हमारा पेमेंट नहीं आया। That is a major issue which I've seen with many people. Many founders have complained about it. हाँ, तो ये मतलब इंडिया में बहुत वो है यार, इसलिए तो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है कि हम सारा कुछ करेंगे, हम गारंटी देंगे कि फ्रीलांसर को पेमेंट मिले और जो ब्रांड है उनको काम मिले। ये सब नहीं होना चाहिए कि काम कर लिया और उनका यूट्यूब चैनल 10 गुना ग्रो करा है, उनका डेड चैनल था, उनकी टीम किसी लायक नहीं थी। मैं सही बता रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट में हायर कर लेते हैं ऐसे कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, और उनका खुद का कुछ कंटेंट बनानी होता, दे जस्ट कम इन एंड यूट्यूब से देख के बता रहे होते हैं उनको भी। ये तो है। ओके आई अच्छा, जब आपने एनिमे देवता स्टार्ट किया था, डिड यू हैव एनी आइडिया कि भाई ये एक्वायर करवाना है या फिर कोई कुछ और ही प्लान था? यार हमने तो ऐसे स्टार्ट करा था, ऐसे ही हमारा, आपको स्टोरी बताता हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई, ठीक है, नॉट लाइक प्लेन वगैरह से, आई वांटेड टू मेक जेट पैक्स, है ना, तो मैंने कहा करना पड़ेगा, तो आई ट्राइड एनडीए एयरफोर्स, फाइनल राउंड में नहीं हुआ, इट वाज इन काशी वाराणसी, अच्छा 2020, है ना, तो तब तक है ना आई वाज डूइंग प्रीटी वेल, है ना, 96 बोर्ड्स में थे, और स्टिल क्राइंग की 96 कमाए हैं, ठीक है, बहुत कमाए हैं, है ना, ऐसा वाला पर्सन था मैं, टिपिकल इंडियन academically scholar, हाँ नर्ड, है ना, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे वो दिया
एंड दैट जो इंटरव्यूअर था तो एयर कोमोडोर जो भी थे वो, तो उन्होंने बोला कि यू आर लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, यू आर रनिंग मैराथन्स, यू आर डूइंग एवरीथिंग यू वांट, कंपटीशन में जीत रहे हो, यू आर आल्सो स्कोरिंग गुड, ठीक है, बट इट्स नॉट व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। मैंने कहा यार आई वांट टू डू दिस, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू एट एयरफोर्स। तो तब मैं वहाँ से निकला एंड आई डिसाइडेड, काशी घाट पे बैठा था, बोला कि अब बिजनेस करते हैं। हो गया, आई नीड 4 करोड़ टू मेक अ जेट पैक। एयरफोर्स में नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, खुद से बना लेंगे। 4 करोड़ टू मेक अ जेट पैक एमवीपी बनाने के लिए, ठीक है, एंड 4 करोड़ जॉब्स तो आएंगे नहीं, तो लेट्स स्टार्ट बिजनेस। तो गोलगप्पे का ठेला लगाएंगे गर्ल्स हॉस्टल के सामने, लड़की भी आ जाएगी, गोलगप्पे भी, पैसे भी आ जाएंगे, ठीक है, बहुत मस्त चलेगा। पर हमने फिर वो आइडिया रैप अप करा और मतलब ट्राई नहीं करा हमने वो, और मल्टीपल आइडियाज घर पे लेके गए कि यार ये करना है। पापा कहते हैं नहीं, जॉब कर ले पहले 2 साल, उसके बाद डिसाइड करना। टिपिकल जो शार्क टैंक के पहले का टाइम है, तो शार्क टैंक पे तो अब तो काफी इजी हो गया स्टार्टअप करना, क्योंकि अब वो हाईलाइट हो गई है ना। तो हमने फिर बिना बताए, मेरे को ऑप्शन था कि इफ आई वांट टू, आई स्कोर्ड गुड, मेरी रैंकिंग भी अच्छी थी, तो आई कैन, मैं जयपुर में करा है, मैंने डमी स्कूल करा है, कोटा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई कुड आइदर गो इन अ बेस्ट, सेकंड बेस्ट कॉलेज ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट कॉलेज, और आई कुड गो अवे फ्रॉम माई होम इन देहरादून, यूपीएस पहाड़ों में पढ़ लूँ, ठीक है। तो मैं पहाड़ों में चला गया कि यार अब सेकंड बेस्ट मिल रहा है, फर्स्ट बेस्ट नहीं मिल रहा, तो मैं वहां तो जाऊंगा नहीं, है ना। और अब मैं करूंगा मस्ती, अब मैं पहाड़ों पे जाऊंगा घर से दूर, ताकि मैं इस पे वर्क कर सकूं। तो मैं घर से दूर गया, वहां पे स्टार्टअप स्टार्ट करा, और एनिमे देता मैं, साथ में यूट्यूब चैनल था मेरा, तो उसमें कंटेंट बनाता था। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई कि ब्रांड, लोगों को चाहिए अच्छा ब्रांड, तो मैंने बनाया मोस्ट अफोर्डेबल ब्रांड बनाया, उस ताकि स्टूडेंट भी अफोर्ड कर पाए, सब कुछ करा, बहुत अच्छा स्केल हुआ। 1 साल के अंदर 10,000 कस्टमर्स, ठीक है, विद 600 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सिर्फ मनी रोटेशन था वो। आज तक घर वालों को पता नहीं था, कुछ नहीं था, 600 रुपए लगाए, स्टिकर्स लाए, स्टिकर्स बेचे ऑफलाइन, वहां से पैसे आए, इकट्ठा करा, ऑनलाइन स्टोर बनाया, सब कुछ करा। देन एक बार होता है, मेरी मासी है ना ब्रांच मैनेजर है, जहाँ पे मेरा बैंक है, तो उन्होंने बोला इसके इतने पैसे कैसे आ रहे हैं अकाउंट के अंदर। मैंने घर पे कॉल लगाया, घर वालों ने मुझे नहीं बताया, वो डायरेक्ट घर वहाँ गया है, हॉस्टल आ गए। हॉस्टल पे सीन ऐसा था कि जब हम पोस्टर्स बनाते थे ना, तो पोस्टर्स आर वेरी हैवी, है ना, मतलब हमारे बनते थे बहुत मोटे पोस्टर्स, 300 जैसे मैट लैमिनेशन करा के, वेरी हैवी पोस्टर्स। तो हमारे पास होते थे हजारों डिजाइन, तो वो एनिमे पोस्टर्स भेजते थे हम पहले एनिमे देवता के अंदर, तो वो बहुत हैवी होते थे, तो बार बार उठा नहीं सकते थे हम उसको। तो हमने उसको बेड पे रख रखा था और नीचे सोते थे। तो घर वालों ने हालत देखी, ऊपर कहा कि यार ये तो नहीं चलेगा। बोले कितना रिवेन्यू है फर्स्ट ईयर का? मैंने कहा 70 लाख। 600 रुपए लगा के 70 लाख। और मेरे घर वाले और एस्टोनिश्ड कि ये कॉलेज की फीस तो इसने 4 साल की 8 साल की निकाल दी, है ना, 8 साल से भी ज्यादा, है ना। 16 लाख की फीस थी हमारी कॉलेज की, तो कॉलेज तो मैं गया नहीं था ज्यादा, तो इसने बहुत कुछ रिवेन्यू के टर्म्स में तो निकाल दी थी ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, तो इनकम टैक्स की वो हो जाएंगे, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी प्रॉपर्ली, फिर हमने फिर एनुअल पैसे स्टार्ट हुआ। ओके, तो उस टाइम भी आइडिया नहीं था कि एक्वायर करवानी है? नहीं, कोई आइडिया नहीं था, हमें तो बस वो करना था कि अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करनी थी। करते करते इट बिकेम बिग। मतलब स्टार्टिंग गोल वाज ऑब्वियसली कि मेरे को 4 करोड़ रुपए चाहिए, बट वो 4 करोड़ रुपए हमें 3 साल तक रियलाइज हो गया करते करते कि हमने रेवेन्यू बहुत कर लिया, पर 4 करोड़ प्रॉफिट में एज अ सैलरी निकालना टू स्टार्ट समथिंग एल्स इज नॉट पॉसिबल। राइट, तो इट्स द राइट टाइम नाउ कि हम इसको स्विच करें और अब वापस से टेक के गोल में जाएं। ओके, Unjob.ai is actually with the handle unicorn in 2026. हाँ. Right. What? Why? So unicorn in 2026 is my personal handle. It's our community of startups. तो हमारे अभी इंडिया की fastest growing startup community है. तो why this username? Because I want to build a $1 billion company by next year, 2026. And I know it seems impossible for most founders क्योंकि है इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, बट लोगों ने करा है। इंस्टाग्राम बिकेम $1 billion कंपनी, लवेबल डिड 800 million dollars in like 10 months, ठीक है। देयर हैव बीन टेक कंपनीज जो वायरल गई हैं ऐसे एक साल के अंदर $1 billion पे, तो वी कैन डू दैट। आर यू गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान? हाँ, यू आर। हाँ, if you have to share your plan, like maybe not just the numbers, so see my plan was कि हम 4 months तक हाई बिल्ड करेंगे, then we will launch and we'll get 100 users on the first day. ठीक है। We onboarded 250 brands and around 1,000 users in the first day. Okay. On the first day itself, and that's out of them around 400 users
पेड प्रीमियम, Oh, okay. कन्वर्टेड टू प्रीमियम, अच्छा. जो कि हमारा प्लान ही नहीं था फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, बट हमने बाद में अभी काफ़ी सारे प्लान्स में चेंज करा, वी मेक इट लॉट ऑफ फ्री फॉर एवरीवन, तो दोज पीपल जिन्होंने पहले 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया माइट बी रिग्रेटिंग नाउ, बट उसके अलावा सब बढ़िया चल रहा है प्लान के अकॉर्डिंग. अच्छा. And what will you do if that goal is not achieved? Let's hope कुछ it नहीं is. यार, But ऐसा नहीं हो सकता कि अचीव नहीं होगा. इट विल बी लाइक मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिले हो जाए, है ना, मे बी 2026 तक ना हो, 27 में हो जाए, पर होगा तो सही हो तो. okay. And what gives you this much confidence? यार सी आई हैव कहते ना, आई हैव स्टॉप्ड रैप्ड अप प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है, जो प्रॉफिटेबल था उसको बंद करके आई स्टार्टेड दिस, Okay. ठीक है, तो आई हैव टेक्निकली गिवन माय होल करियर अ टोटल न्यू ट्विस्ट. तो अब तो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. Right. And what does goal for 2026 apart from this look like for you personally? I want to lead a team of at least 150 people by Okay. next year. अभी 15 है, 10 times टीम साइज करना ही पड़ेगा. Okay. 2027 के लिए इतना दूर का नहीं सोचा मैंने अभी. उसका जब यूनिकॉर्न बन जाएगा तो आई विल थिंक कि हमें कुछ नई कंपनीज बनानी है. नाउ वी वांट टू गो इनटू हार्डवेयर. आई रियली वांट टू गो इनटू हार्डवेयर, मेक स्टफ लाइक एलेक्सा, है ना, जैसे अभी आपने देखा Echo Dot Alexa जो Amazon की है, समथिंग जो आपके डेली लाइफ में काम आए. But Alexa was not that profitable. Imagine I've already made a company. SaaS में तो it's all profit, है ना, it's not like ये marketing में बहुत बंद कर रहे हैं. तो उससे ज़्यादा I can run companies because I want, ठीक है, उसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, doesn't matter. टाटा की काफी कंपनीज हैं that do loss and but एक कंपनी चला लेती है. Okay, I think we can wrap this up. हाँ, sure. Okay, I think we have covered this. I would love to do it again at the end of 2026 or 2027 once you have achieved your unicorn in 2026. Done. है ना? And I want to know कि यहाँ अभी वाले देव और तब वाले देव में क्या डिफरेंस आया है, कंपनी में क्या डिफरेंस. Hopefully we will be doing more fun than this right now. ठीक है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही है. हाँ. तो फन होना ही है. Definitely. Let's show our final results. हाँ. क्या किसने स्केच किया है? I think mine was better. Mine is a lot better. Hey, come on. क्या है ये? It's the unicorn. उसकी आयरन भी नहीं हो रखी ड्रेस. तो क्या हो गया, वो इतना काम करता है. It's Coffee and Unicorn, guys.